या क्षितिज, यस ये गेस करो गाना कौन सा है? गाना ओके oh is it that one आंग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सूं तू राजा की राज oh that's a good song You gotta continue. yeah come on Okay, how many episodes are we in? 10 episodes in? I think we're in 13 14 episodes 13, 14 episodes in. Well, you know, my mission since day one has been to get Kshitij to sing. Or you know actually in it's from the same movie you know there was this rap or like this Jugni song I actually sang that on stage Oh, and you're gonna sing it here right now. Let's hear some rap. Let's give it up for Kshitij. Let's go, Kshitij. I don't remember hold on No think pressure. about it because I remember I did it in college I can give you a beat for rap, like beatbox. okay. No, it's off beat. Let's go. I was like okay let me hear that I actually wanted to see it I would need to let me practice. hear that था ना ਮੈਂ ਜੁਗਣੀ ਦਾ ਸਜਣਾ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੇ ਰਜ ਰਜ ਵਸਣਾ ਜੁਗਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੀਲਾਂ ਠੁਕ ਠੁਕ ਠੁਕੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਲਖੂਣ ਨੂੰ ਕੀਲਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਲੈਟਰ ਚਮਕੀਲਾ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂ ਯੂ ਬੋਲ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂ ਯੂ ਬੋਲ ਉਹ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਉਹ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਕੈਨੇਡੇ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਗੱਭਰੂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕੋਡੀਆਂ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਬੈਠਾ ਹਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਬੈਠ ਗੁਣੀਓ ਤੜਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜੁਗਣੀ ਹੱਸਦੀ ਵੇ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਵੇ ਹੱਸਦੀ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ That was great. All right. So Thank you. I think I did that on stage, so I had the confidence. पोइट्री के साथ साथ आप रैपर भी बन गए. Yeah. लेकिन शायद रैप और पोइट्री एक ही. चलो उसके बारे में कभी और बात करेंगे. Yeah, we can actually do an episode, huh? Like rap or poetry, how they come together, or where does the difference lie, right? Or what are the similarities? What are the similarities? Yeah. As well? Yeah. Is a good rapper also a good poet? And a good poet can also be a good rapper. We can leave that to another day. Yeah. But because I have a lot of thoughts that just came to my mind. Yeah, I was just me like, too. what I do have a you lot mean? of thoughts too. So we'll leave it to We'll do another episode on that one. आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो तू राजा की राज दुलारी. तू राजा की राज दुलारी. हाँ. So ये जो है मुझे बड़ा मज़ेदार गाना लगता है और मैं इसे like I think during college or something like you know we used to even sing that as well like as a group. राइट तो वो है कि तू राजा की राज दुलारी मैं सिर्फ लंगोटे वाला सूं ये आपकी खड़ी बोली हरियाणवी के अंदर प्रॉपर है आई थिंक खड़ी बोली हरियाणवी के बारे में कुछ बताओ यार हरियाणवी इज समथिंग दैट इज स्पोकन लाइक यू नो इन द रीजन ऑफ हरियाणा एंड खड़ी बोली जो ओवरऑल है आई थिंक ये राजस्थान वगैरह में बोली जाती है एज वेल एंड इसका एक अपना स्टाइल है इसकी एक अपनी वो है बट जो लिपि ये यूज़ करते हैं वो इट्स सिमिलर टू हिंदी मतलब हिंदी यूज़ करते हैं देवनागरी जो लिपि है स्क्रिप्ट है सेम वो स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं बट इसका एक अपना मैं और एक्चुअली मैं तो बड़ा ही हरियाणा में हूँ तो माई फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग वी यूज्ड टू speak Haryanvi. Oh yeah very well even today like you know I have a lot of friends from college school and everything and when we call होता है ना कि कुछ लोगों के साथ आप कितने भी साल अलग हो when you are with them you are back in that space right you revert back to your language वो आप realize भी नहीं करते हाँ. that's just how you communicate and that's how you feel like the time never passed yeah right in moments of true happiness or true sadness is when you revert back to your mother tongue rather like where you it's in those moments. Well, I don't know what they're making me happy or sad, friends. Yeah. अच्छा हरियाणवी में कोई चीज़ हिंदी में बोलो और फिर उसी को हरियाणवी में बोलो. Example दो. तो I mean simple thing is क्या हाल है? के हाल से? के हाल से? के हाल से? के हाल. लेकिन वो हाल बन गया मतलब kind of like वो ल है लेकिन उसके अंदर थोड़ा एक accent सा आ जाता है और है का सै बन गया. के हाल है भाई? के हाल से भाई? के चल रहा है? खाना खाओगे? खाना खाओगा तो समझ तो obviously but yeah there are some words that are different as well जैसे अब पंजाबी में बेबे होता है it used for your mother but in Haryanvi it will be for your sister अच्छा so baby is mother in Punjabi but
Haryanvi sister. Interesting. Right, so there are other words as well. They're different, but this one. तो तू राजा की राज दुलारी मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सू भांग रगड़ के पिया करूँ मैं कुंडी सोटे आड़ा सू. राइट, इसको पहली बात मैंने एक्चुअली कई बार देखा, लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि मतलब बोला क्या जा रहा है. पहली बात तो ये मूवी के अंदर आए थे, ओए लक्की लक्की ओए ऑब्वियसली, एंड उसके अंदर आई थिंक इट्स अ क्लासिक स्टोरी ऑफ प्रिंसेस एंड अ स्टेबल बॉय. And if you see the movie, it kind of reflects that as well. Like princess falling in love with a stable boy. Yeah. Right? Stable boy से मतलब के गरीब उनके पास काम करता है कुछ. बट इसके अंदर स्टेबल बॉय नहीं है, लेकिन जो एक्चुअली ये बात हो रही है, डू यू नो लाइक शिवा, like you know one of the Hindu gods has this here, and Parvati his wife. Okay. Right? And before their marriage, this is Shiva talking to his would be wife. Is that what the song was written about? Yes. Achha. Yeah, it's a situation where Shiva is essentially saying that why do you want to marry me? Because Parvati has fallen in love with him and everything, and he's like, you're a princess and I live a very ascetic life, like in a, like, you know, I don't have all the comforts of a palace. Our lifestyles are very different. Our lifestyles are very different. So it's a poem about between, like, you know, material versus transcendental, like spiritual versus worldly. Right? And that's essentially what it's talking about, that hey, how are you going to adjust here? I don't want you to, like, you know, I like you too, but I don't want you to suffer. It's a pragmatic approach in love, I think, right? Yeah, you can say that. कि प्यार तो है, लेकिन अब आगे कैसे एडजस्ट करेंगे और क्या करेंगे. तो I think it is a nice way to look at your gods as well. Right? क्या मतलब? Because हमने, लेकिन कई बार I think people can relate to God a little better in that sense. Like, you know, I think मुझे एक बड़ी अच्छी बात, अब मुझे एक्चुअली मैंने किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी. एक इंडिया में एक स्टेट है उड़ीसा करके, एंड वहाँ पर एक कस्टम है कि हर साल जब वो अपनी शायद और मुझे नहीं पता कि वो पूरा एग्जैक्टली क्या कस्टम है वगैरह, ये मैंने सुना है. आई वांट टू कंफर्म इट विद समवन, सो इफ़ यू गाइज नो जस्ट कमेंट in the chat, right, that जब भी वो अपनी फसल वगैरह बोते हैं every year, so every फसल or something they pray to that god, or like they have like a little like deity or something, right, कि वो deity को वो pray करते हैं, worship करते हैं उस time पर, and कि deity इस फसल का ध्यान रखना और to make sure that it is good and not. अच्छी निकल आए तो अच्छी है, लेकिन अगर जिस साल फसल नहीं उगी या कुछ बुरा हो गया या कुछ है, तो वो सब बैठ के उस डीटी को गालियाँ भी देते हैं फिर. अच्छा. या टू होल्डिंग गॉड अकाउंटेबल. एंड आई फील लाइक दैट्स अ वेरी ह्यूमन, लाइक, यू नो, वेरी bringing God down to be like, okay, you sit in front of me, like, you know, you told me that, or the world told me that if I do this will not happen to me, but it still happened, so there's something broken in your system, and now you are holding God accountable for that. Yeah, like ये और भी poetry works more like शिकवा. But उसके हाल में फिर जवाब शिकवा भी जवाब शिकवा नहीं, लेकिन जवाब शिकवा, you're right, it's a very human way to connect with your God, right? Like आप सोचते हो कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है, but at the same time it's a relationship that you have with God. And शिकवा हो सकती है. Yeah, वो अगर आपने नहीं पढ़ी है, actually I think we can cover it as well. Yeah, we should do a शिकवा जवाब शिकवा. शिकवा एंड जवाब शिकवा. मैं शिकवा में से कुछ कहूँगा, तुम जवाब शिकवा पढ़ना. ठीक है. Right? मैं जवाब शिकवा वाला. You'll be essentially the God in that one, right? Yeah. At least putting God's perspective in front, right? अच्छा, तो ये इसमें कैसे tie in करता है जो अभी हम बात कर रहे थे? तो this is a good way to look at it, like, you know, gods that they have the same problems as we do, like, you know, कि उनका भी अब डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के बारे में बात हो रही है कि हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल इतनी डिफरेंट है कि हाउ विल वी एडजस्ट. एनी ह्यूमन विल हैव दैट थॉट, राइट, लाइक, यू नो, अगर कोई भी शादी करने जा रहा है तो आपको डर तो लगता है, बिकॉज आपको लगता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो वो एडजस्ट नहीं कर पाई, तो राइट. तो वो उन्होंने फिर ह्यूमंस ने भगवान को भी ऐसे ही रखा कि भाई क्या पता वो भी एडजस्ट नहीं कर पाते, राइट. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव टू लुक एट, एंड पीपल कैन रिलेट अ लिटिल बेटर टू गॉड. You know, it's not something that's sitting in the sky. This is something like you can take a lesson from it, is what you're saying. Yeah,
या सो बात जो हो रही है वो कह रहे हैं कि तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सूं. लंगोट होता है आपका जो आप एक साधु वगैरह पहनते हैं वो. इट्स लाइक एन सिंपल वन लाइन क्लॉथ दैट यू वेयर, लाइक धोती की तरह होता है. धोती भी नहीं है, उससे भी छोटा होता है. क्या मतलब? शॉर्ट? इट्स लाइक एन अंडरवेयर ऑलमोस्ट. इट्स लाइक एन अंडरवेयर ऑलमोस्ट, बट द वे यू टाई इट अप एंड एवरीथिंग इज लाइक अ लंगोट उसको कहते हैं. अच्छा, वो जो यहाँ तक आता है. ओके. तो बट वो लंगोट है, इसको यू टाई इट अप. शॉर्ट्स बेसिकली. तो तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सूं, भांग रगड़ के पिया करूं, मैं कुंडी सोटे आड़ा. अच्छा, ये फिर भी समझ आ गया. भांग रगड़ के पिया मतलब ये वो वाला शायद रगड़ नहीं हो जो रगड़ वाला ही रगड़ है, क्योंकि कुंडी सोटे जब इन्होंने कहा है, वो कुंडी सोटे क्या होता है हमारे यहाँ पे, अच्छा पंजाबी में शायद उसको कहते हैं दोरी सोटा. वो होता है ना पत्थर का एक, आपके पास एक कटोरा सा काइंड ऑफ लगा लो, लेकिन वो पूरा ऐसा पत्थर का होता है और उसके ऊपर आप एक पीसने के लिए आप उसके अंदर मसाले वगैरह डालते हो और उसमें पीसते हो. तो ये कुंडी सोटा वही है. अच्छा. राइट, उसमें ही रगड़ रगड़ के भांग बनती है. और ये स्पेशली आपके होली के टाइम पे ये जो भांग पी जाती है, ये उसी के नाम पे पी जाती है, शिव के. सो इट्स एक्चुअली ब्रिंगिंग अ कल्चरल रेफरेंस इनटू. ओके, आई सी. राइट. तो भांग रगड़ के पिया करूं, मैं कुंडी सोटे आड़ा सूं, तू राजा की छोरी से मारे एक भी दासी दास नहीं, साल दुसाले ओडन आड़ी, मारे कंबल तक भी पास नहीं. अब वो क्या कह रहा है? तो समझ आया, आ गया. हाँ, कि तू राजा की छोरी से, भाई तू तो उसकी बेटी है, मेरे एक भी दासी दास नहीं है, कि मतलब मेरे पास यहाँ पर कोई नौकर चाकर नहीं है. अच्छा, दासी दास नहीं समझ. दासी और दास, नौकर चाकर. अच्छा. राइट. साल दुसाले और डनाड़ी. दुसाला क्या होता है? आपका जो शाल होती है लंबी वाली. हाँ. राइट. लग्जूरियस. लग्जूरियस. राइट. तो वो कह रहा है आपके पास होंगी, मेरे पास तो कंबल चादर भी नहीं है. या मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे. तो तू राजा की छोरी से ऑपोजिट दिखाएं, लाइफस्टाइल रेफरेंस. या और वो रहते भी, और ये भी बताता हूँ, रहते भी वहाँ पर है वो. शिव जी जो माना जाता है वो कैलाश पर्वत जो आपका हिमालय की चोटियों में रहते हैं, जो माना जाता है वहाँ पे ही इज एन एसेटिक एंड ही इज एसेंशियली मेडिटेटिंग देयर. दैट्स व्हाट इज बिलीव्ड टू बी. राइट. तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, मतलब ठंड भी है. तो फिर साल दो साले ओडन आड़ी, मारे कंबल तक भी पास नहीं. मैं तो एक लाइन क्लॉथ बैठ के बैठा रहता हूँ लंगोट पहन के. अगर आप कभी इमेज भी देखोगे, we can pop it up on the screen as well. So he has that image. Tony, can we pop up an image? All right. There you go. Yeah. So तू बागा की कोयल से, अड़े बर्फ पड़े हरी घास नहीं, किस तरिया दिल लागे तेरा, शतरंज चौपड़ तास नहीं. सही है. राइट. कि तू बागा की कोयल से, भाई तू बागों में कोयल, तेरी जो मीठी आवाज, मतलब उसको एज अ कंपेयर मेटाफर यूज कर रहा है कि तू बागों में पली हुई है. वो पिक्चर पेंट कर रहा है कि बाग हो, उसमें कोयल हो, लाइक कितना सरीन, कितना अच्छा पिक्चर है. लाइक तो वो उसको कंपेयर कर रहे हैं उनसे. बाकी आगे कह रहे हैं अड़े बर्फ पड़े, यहाँ पे बर्फ पड़ती है. अड़े होता है यहाँ पर बर्फ पड़ती है, हरी घास भी नहीं है. हाँ, वो वहाँ पे पेंट किए पिक्चर के क्या बाग है उधर, और यहाँ पे घास, चिड़ियों की आवाज आ रही है, और ये जो है बंजर जमीन, यहाँ घास भी नहीं उगती. तो किस तरिया दिल लागे तेरा, शतरंज चौपड़ ताश नहीं. अब शतरंज हो गया आपका चेस, चौपड़ हो गया आपका डाइस वाला गेम, इट कम्स क्लोजर टू लूडो, एंड ताश इज ताश. राइट. तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दिल कैसे लगेगा तेरा, तू महलों में पली है, जो कोर्ट्स के अंदर, जो महल के अंदर कोर्ट्स होते हैं, वहाँ गेम्स खेली जाती है, ये सब होता है, मतलब टाइम पास करने के लिए. यहाँ सिर्फ सॉलिट्यूड, यहाँ कुछ नहीं, इट्स सॉलिट्यूड, कंप्लीट सॉलिट्यूड. राइट. तो कभी एक बार देखना, अगर I mean, not even from religious standpoint, but I am even interested in, like, these like these gods have their own, like, kind of अपनी एक पर्सनैलिटी है उनकी, एक कैरेक्टर है इन इटसेल्फ. राइट. आप कभी देखना कि जब शिव जी की बारात गई थी, तो बारात में कौन कौन गया था, कि ऐसा भी एक किस्सा ये भी है कि जब बारात गई थी तो वहाँ पे वो जो उनके ससुराल वाले थे डर गए थे, क्योंकि इनकी बारात में वो उसमें चला जाएगा कि बहुत सारे दानव आए थे. दानव होता है देवता और दानव. राइट. जो राक्षस जिनको कहा जाता है, मतलब मॉन्स्टर्स. या ऑलमोस्ट. राइट. एंड दे आर बिग फैंस ऑफ शंकर, शिव जी. राइट. सो वो उनको फॉलो करते हैं, उनकी वो पूजा करते हैं. तो वो करते हैं, तो उनकी बारात में भी वो गए थे. अच्छा, सही. राइट. जब उनकी बारात गई थी, तो वो अलग किस्सा है एक. तो ये है कि तू बागा की कोयल से, अड़े बर्फ पड़े हरी घास नहीं, किस तरिया दिल लागे तेरा, शतरंज चौपड़ ताश नहीं, किसे साहूकार ते ब्याह करवा ले, किसे साहूकार ते ब्याह करवा ले, मैं खाली सोटे आड़ा सूं, भांग रगड़ के पिया करूं, मैं खुंडी सोटे आड़ा सूं. राइट. वो कह रहे हैं साहूकार,
साहूकार होते हैं बिजनेसमैन, वेल्थी मैन, उनसे शादी कर, मेरे पास कहाँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. तो ये प्यार कैसे हो गया? तो शी फेल इन लव. आई मीन मतलब इसकी भी कोई स्टोरी होगी ना? Yeah, I think so. Right. I think इनकी आई थिंक शिव पार्वती की तो बहुत सी स्टोरीज हैं ऐसी. मुझे अब वो प्यार वाली याद नहीं आ रही कि हाउ दे फेल इन लव, बट उनका जब ये भी है कि आई थिंक पार्वती का जब आई थिंक एट द एंड उसका भी रेफरेंस आएगा, मरने का नहीं, बट व्हेन शी डाइड और समथिंग, लाइक यू नो एट सम पॉइंट आई थिंक समथिंग हैपेंड, लाइक देयर वाज एन एक्सीडेंट और समथिंग, एंड ही वाज सो मैड दैट शिवजी इज फेमस फॉर हिज तांडव डांस. तांडव जो होता है, इट्स लाइक अ डांस ऑफ द यूनिवर्स एज दे कॉल इट, द क्रिएशन एंड द डिस्ट्रक्शन, डांस ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड द क्रिएशन एज दे कॉल इट, राइट. तो जब वो होता है तो ही इज वेरी मैड, ही इज वेरी लाइक you know, like angry. And so he does that, and then when it's like a destruction of the whole world kind of thing, right? And जब उनकी वो थर्ड आई भी खुलती है वगैरह वो सब भी है, तो I think वो भी रेफरेंस में आएगा अभी शायद यहाँ पे. हाँ, yeah, I don't know much about it, so that's why this is all very interesting. It's loaded with cultural references. But I think it's not that hard to imagine then, because this is a tale that's been told many times in many different cultures, like again as you said, you know, princess falls in love with the stable boy. So I guess it's not that hard to imagine. I'm trying to imagine matlab because this poem does such a good job of the juxtaposition. हर शेर में जो है वो ऑपोजिट दिखाया है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ तो प्यार कैसे हो गया, ना, like, but I guess it's not that hard. Yeah, I mean, why, like, you know, you can fall in love with someone. एक मुझे इसमें ना परवीन शाकिर का एक मुझे शेर याद आ रहा है इसके ऊपर. हुस्न के समझने को उम्र चाहिए, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए, जाना 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती. वाह. राइट. कि अब लेकिन अब मतलब जैसे दे फेल इन लव, मे बी वो बातों से, या लाइक यू नो कि 2 घड़ी की बातें हुई होंगी या जो भी हुआ हो, तो शायद उसमें दे फेल इन लव, बिकॉज आई फील लाइक women have more emotional intelligence than men, so I think they're more susceptible to looking at an overall personality than just the looks. At least that's how I understood, but maybe I'm being sexist towards men. I'm sure there are men out there that are equally or more emotionally intelligent. Disclaimer देना पड़ेगा हाँ तुम्हें यहाँ पे अपना. I'm not that emotionally intelligent. I had to learn it. It's a learned trait. I guess it's also opposites attract too. So like ये बात ही वही हो रही है, you know, juxtaposition. Maybe that's why. Yeah. Now that I think about it, वो परवीन शाकिर वाला शेर बैठ नहीं रहा. तो खड़ा करा. We win some, we lose some. Right. It's okay. अच्छा हुआ परवीन शाकिर का एक तुमने शेर भी पढ़ दिया. उनके ऊपर भी एक एपिसोड करते हैं. हाँ चलो नेक्स्ट एपिसोड पर करेंगे. ठीक है चलो. यार हम सारे प्रॉमिस कर देते हैं इतने सारे एपिसोड्स के कि करते भी तो हैं. I think so far we have done it. So far we have done them all. Okay. तो किसे साहूकार ते ब्याह करवा ले, मैं खाली सोटे आड़ा सूं, भांग रगड़ के पिया करूं, मैं कुंडी सोटे आड़ा सूं, बंद दुने में तपा करूं, तू आग देख के डर जागी, राख घोल के पिया करूं, मेरा भाग देख के डर जागी. अब इसमें क्या हो रहा है कि एक शिव जी की एक वो है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं या मतलब कुछ स्पेसिफिक उनकी एक रिचुअल्स वगैरह है जिसमें वो राख जो ऐश होती है उसको अपने बदन पे, शरीर पे रब करते हैं. राइट. एंड ही एक्चुअली इज बड़ी एक मतलब उनका भी आप कभी पिक्चर्स वगैरह या रेफरेंसेस देखोगे या जो भी मतलब उनकी जो एक इमेजरी बनाई गई है तो उसमें वो ये सब आता है. Right, so anyone like you know who knows the culture, who anything like you know can understand what they're talking about. कि बंद धुने में तपा करूँ, तू आग देख के डर जागे. अब बंद धुने के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ रेफरेंस दिया जा रहा है कि एक शिव जी की हमेशा मूर्ति जो आइडल होता है वहाँ पे ज़रूर होता है, शमशान घाट पे जहाँ पे बॉडीज़ को जलाया जाता है. अच्छा. राइट. तो वो एक तो वो और तो वहाँ पे उनको माना जाता है कि वहाँ पे वो मेडिटेट कर रहे हैं या वहाँ पे उनकी प्रेजेंस है. राइट. तो वो बंद धुने में तपा करूँ मतलब जहाँ पे आग लगी हुई है, जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, वहाँ मैं तप रहा हूँ, वहाँ पे मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, तू आग देख के डर जाएगी. राइट. राख घोल के पिया करूँ, मेरा भाग देख के डर जाएगी, मेरा भाग्य, मेरा फ्यूचर, मेरी डेस्टिनी देख के डर जाएगी. 100 सांप पड़े रहे गल में, नाग देख के डर जाएगी. मेरे गले के अंदर सांप पड़े रहते हैं. अब आप उनकी इमेज देखोगे तो आई थिंक एक किस्सा भी है जिसमें शिव जी ने
फॉर द वर्ल्ड आई थिंक ही ड्रैंक पॉइजन और समथिंग, एंड दैट्स वाई उनको नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि उनका पॉइजन पी के उन्होंने सारा जो जहर था अपने गले के अंदर होल्ड कर लिया था, उसकी वजह से उनका जो गला था वो नीला पड़ गया था। ओके जहर, तो उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। और एक आई थिंक इंडिया में ऋषिकेश हरिद्वार के पास एक जगह भी है कॉल नीलकंठ, which is essentially dedicated to him, and you go there and you worship him or whatever, right? तो 100 सांप पड़े रहे गल में, नाग देख के डर जागी, तांडव नाच करूं बन में, रंग राग देख के डर जाएगी। वो तांडव जो मैं कह रहा हूँ, राइट? तो द डांस ऑफ द क्रिएशन, द यूनिवर्स, द क्रिएशन एंड द डिस्ट्रक्शन, राइट? तो द वे इट इज बीइंग अंडरस्टूड, लाइक तुमने आई थिंक ये सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं सुना, राइट? ये तीन ये माने जाते हैं जो एसेंशली ब्रह्मा जो माने जाते हैं, ये तीन गॉड माने जाते हैं इन द सेंस, जो सबसे टॉप पे जो मतलब गॉड इन द सेंस, राइट? ब्रह्मा इज़ फॉर क्रिएशन एंड विष्णु इज़ टू टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक पालनहार जिसको कहते हैं, पालने वाला, एंड देन शिवा इज़ द डिस्ट्रक्शन, राइट? तो वो तीन ड्यूटीज़ इनके अंदर बटी हुई हैं इन दैट सेंस, राइट? इससे मुझे एक वो भी याद आता है, गुरबाणी के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक वो है कि एका माई जुगत वे आई, तिन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ये तीनों उनके बारे में बात हो रही है, तीनों के बारे में बात हो रही है कि एको माई जुगत वे आई। अब आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट if I'm missing out like you know anything there, or if I'm not pronouncing it right, but eka mai jugat vyai tin chele parwan, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। सो अब इसके अंदर बात हो रही है कि एक ही जब आप सिखिज्म के अंदर जाते हो तो आपको फिर वो बात हो रही है कि वन गॉड, लाइक यू नो देयर इज एक ओंकार, एक ओंकार की बात हो रही है, राइट? एक की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि एका माई जुगत व्ययी, मतलब एक ही गॉड है और उसको सारा जुगत और जो जग है उससे ब्याया हुआ है, या मतलब उसके ही काइंड ऑफ उसी की वर्शिप, वो मतलब उसी के उसमें उसी के खेल के अंदर है, ये दुनिया उसी की बनाई हुई है। जुगत व्याई तिन चेले परवान, तीन चेले हैं उनके, अच्छा, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एंड वो संसारी ब्रह्मा जी के बारे में आते हैं, भंडारी उनको बोलते हैं शिव जी को, और जो दीवान लगाना विष्णु जी को बोलते हैं, अच्छा, राइट? तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी का ही नाम है दूसरा। तो ये उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि तीन चेले परवान इन द सेंस कि इनको भी अपनी अपनी ड्यूटीज़ दी गई हैं, सही, राइट? एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज, दे आर डूइंग देयर रोल्स, राइट? कि उनको बनाने की, उनको मिटाने की और उनको पालने की ड्यूटी दी हुई है, राइट? तो वो भी एक रेफरेंस है सिखिज्म के अंदर जो है, राइट? तो बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, मुझे बहुत मज़ा आता है। एक बार मैं पूरी पढ़ना चाहूँगा इसको, पूरी, बिल्कुल। तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सूँ, भांग रगड़ के पिया करूँ, मैं कुंडी सोटे आड़ा सूँ। तू राजा की छोरी से, मारे एक भी दासी दास नहीं, साल दो साले ओढ़न आड़ी, मारे कंबल तक भी पास नहीं। तू बागा की कोयल से, अड़े बर्फ पड़े हरी घास नहीं, किस तरियाँ दिल लागे तेरा, शतरंज चौपड़ दास नहीं। किसे साहूकार ते ब्याह करवा ले, मैं खाली सोटे आड़ा सूँ, भांग रगड़ के पिया करूँ एक्सक्यूज मी, मैं खूंडी सोटे आड़ा सूँ। बन धुने में तपा करूँ, तू आग देख के डर जागी, राख घोल के पिया करूँ, मेरा भाग देख के डर जागी। 100 सांप पड़े रहे गल में, नाग देख के डर जागी, तांडव नाच करूँ बन में, रंग राग देख के डर जागी। इसके बाद एक्चुअली एक और लाइन भी थी, तने जुल्फा आड़ा छोरा चाहिए। मुझे याद आया, आई थिंक यहाँ पे है नहीं कि तने जुल्फा आड़ा छोरा चाहिए, मैं लांबे चोटे आड़ा सूँ, भांग रगड़ के पिया करूँ, मैं खूंडी सोटे आड़ा सूँ। तने जुल्फा आड़ा की मतलब जा किसी उससे शादी कर जिसकी अच्छी अच्छी जुल्फे हैं, जिसकी मतलब ही हैज गुड हेयर। मैंने तो क्योंकि अगर आप उनकी पिक्चर देखोगे, इट्स लाइक लाइक एक बहुत लंबा सा एक चोटा बना रखा है, मतलब चोटी भी नहीं है, चोटा है पूरा, छोटा। वही कह रहे ना कि मैं लांबे चोटे आड़ा सूँ। वो बाल ना ऐसे जैसे वो करते हैं ना, मतलब ब्रेड्स बना के, और उसको एक लंबे से चोटे के अंदर रखा हुआ है, ब्रेड को भी ब्रेड किया हुआ, राइट?
तो कह रहे हैं कि तने जुल्फा आड़ा छोरा चाहिए, मैं लांबे छोटे आड़ा सूं, भांग रगड़ के पिया करूँ, मैं कुंडी सोटे आड़ा सूं। या ये एक्चुअली बहुत बड़ी रागनी है, इसको रागनी कहते हैं हरियाणवी के अंदर, और ये आई थिंक मूवी के लिए उन्होंने पिक की गई थी उसको, बट ये जो तुमने अभी पढ़ी है पूरी, ये पूरी गाने में नहीं है, ये पूरी नहीं है। और एक्चुअली इसमें रेफरेंसेस भी, मतलब नॉट रेफरेंसेस बट थोड़े वर्ड्स भी चेंज किए गए हैं। जो एक्चुअली रागनी है वो थोड़ी अलग है, और वो इससे भी लंबी है, वो इससे लंबी है। यस, अच्छा, सो गो चेक इट आउट ब्रो। सो यू वांट टू क्लोज अस आउट विद द कोरस? तू राजा की राजदुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सूं, भांग रगड़ के पिया करूं, मैं कुंडी सोटे आड़ा सूं। Hey guys, I sang twice in this one. Encore. No, I'm just joking. I hope you enjoyed the episode today. Join us for the next one. Thank you so much. Thank you everyone.